सो मेरे बीच में मेरे दो बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने नवंबर 24 में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एएफएम में डेफिनेटली एग्जाम्शन है, आईबीएस पेपर में भी एग्जाम्शन है, बट बस मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईशा शाह पीडब्ल्यूसी से हैं, दिशा गुप्ता इज़ फ्रॉम ग्रैंड थॉर्टन। तो दोनों ही बहुत बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप इन्होंने किया है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी लेकर आते हैं कि हमें बिग 4 में जाना चाहिए, हमें बिग 10 में जाना चाहिए या हमें मीडियोकर फर्म में जाना चाहिए। तो आई थिंक ये अपना अपना सबका चॉइस होता है, बट क्योंकि ये पीडब्ल्यूसी से हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें बताइए जो बिग 4 में काम करने से फ़ायदा मिलता है, और ग्रैंड थॉर्टन का भी आप कुछ बताइए, किस में आपने काम किया, कौन सी कंपनी का ऑडिट किया, कुछ बात बताइए ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्टूडेंट्स को एक करियर काउंसलिंग करें ताकि जो भी बच्चे इस दुविधा में है कि कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उनको आप सही गाइडेंस दे सके। मैं इन दोनों का लिंक्डइन आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस इनका सेशन मैं अपने चैनल में लाइव कर दूंगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप जरूर पूछिएगा। अभी कुछ वर्ड्स आप बताना चाहेंगे अपने आर्टिकलशिप से रिलेटेड? Hi, my name is CA Isha Shah and I did my articleship. I'm currently pursuing it actually from PwC. For the doubt that students have regarding where to pursue their articleship, I think it's important to know the pros and cons. The pros definitely I feel for me outweigh the cons. That's why I joined Big 4 as an article. The thing is with Big 4, I feel that the work culture, like the working, how do you prepare the work papers, how do you deal with the clients, I think the type of clients that you have, all of those things are very varied and very vast, and you get a lot of exposure that way. Aside from that, I feel that one thing that you should know that the leaves, what are the leaves wherever you are applying, what is the work culture, what are the timings, all of these things you have to take into consideration. Otherwise, and most importantly, you have to plan your studies accordingly. So I knew that I would get 4 months leave, so I planned my studies accordingly. I tried to do my classes on time and everything because I knew that for 4 months I would revise only, that I would not get the time to do my classes. So I think all of these things play a vital role, and you should look into different facets and then decide where you want to pursue. I think also a lot of qualified chartereds, they join Big 4s after they qualify because they want to get an exposure of how work is done in the Big 4s. So I feel like as an article, now that I've already done it, now that I've qualified, my avenues are more open. I can go on and try for different companies aside from the Big 4s. Obviously, I can go into other finance fields or other consulting, etc. And I don't have that sort of pressure on me that I have to get into a Big 4 to get to know the work culture and everything. So I think that is a plus point that I felt, and that's why I joined a Big 4. Great. That was an additional point, that since you have already worked in Big 4, now you can explore your avenues in other field also. Grant Thornton, articleship, what you want to say? Yeah, so hi, I'm Disha Gupta, and what I would like to say is कि when we are confused, like हमारी जब intermediate clear होता है, we are very much confused कि whether to join a Big 4 or a mediocre firm, because बहुत सारे लोग बोलते हैं कि Big 4 में pressure बहुत है, final का clear नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी and all, and मेरे को same चीज़ें थी, तो मेरा हो गया था GT में, and then I was confused कि अब join करूँ नहीं करूँ, because पढ़ाई was at the end मेरा first focus. तो but someone said me ki go for it and just experience the environment, and in 2 to 3 months if you are not able to cope up with your studies, then you can just switch on to some other firm. तो मेरे को था कि ठीक है चलो एक बार ज्वाइन तो कर लेते हैं, एंड व्हेन आई ज्वाइन इनिशियली तो वो होता है फ्रेशर वाली फील होती है, तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी न्यू एनवायरनमेंट होता है, कॉर्पोरेट में जाते हो एंड कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर होता है. बट वॉट आई वुड लाइक टू से कि आप एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करो अगर आपको बिग 4 में जाना है. डिस्पाइट येस वर्क प्रेशर होगा एंड बिज़ी सीजन में मे बी मतलब मिडनाइट काफ़ी लेट तक भी हो सकता है, बट वॉट आई वुड से कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, एंड आपका जो वेरियस फर्म्स है, आपको अलग इंडस्ट्री है, एंड इवन अगर आपका लक होगा तो यू विल गेट लिस्टेड क्लाइंट्स, एंड बहुत अच्छे आपको मेनली आपका जो
कम्युनिकेशन है, आप काफ़ी आपको डील करना पड़ेगा विथ वेरी सीनियर पीपल इन द विद द क्लाइंट, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो एक बात तो आई वुड से कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर। एंड स्टडीज़ जो है वो साइड बाय साइड आपकी मैनेज हो जाएगी। डेली अगर आप एक लेक्चर भी देख रहे हो 2 to 3 आवर्स का, तो इट इज़ सफिशेंट। लाइक आप इनिशियली आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो, देन उसके 2 to 3 मंथ्स बाद मैंने क्लासेस ली थी फर्स्टली AFM की। तो मेरा ये था कि इनिशियली बहुत दिक्कत आई थी बैलेंस करने में, एंड क्लासेस नहीं हो रही थी, बिल्कुल कोप अप नहीं हो पा रहा था क्लासेस के साथ। बट ये था कि करना है, पढ़ाई भी करनी है, ऑफिस भी मैनेज करना है, तो आपको दोनों चीज़ें अगर आप साथ में बैलेंस करोगे तो आप कर सकते हो। लाइक आई वुड से कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी जस्ट गो फॉर इट। स्टार्टिंग में लगता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। हम जितना आसान अपने आप को बनाएंगे उतना ही फिर और ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। आप ऐसे स्टूडेंट से पूछिए जो 1 साल जिसको पढ़ाई करने का मौका मिला, और एक ऐसे स्टूडेंट से पूछिए जिसको 3 महीना पढ़ाई करने का मौका मिला। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जिसको 3 महीने का पढ़ाई करने का मौका मिला वो उतना ही पढ़ेगा जिसको 1 साल का मिला, क्योंकि 1 साल वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लीनियंट हो जाएगा। अब आपको पता है आपका टाइम कम है तो आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करेंगे। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है लहरों से झूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे सागर को चीरना सीखो। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करना है। आपने बड़ी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की, आपने सारा एक्सपोजर लिया, प्लस आप अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रेज्यूम है, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबसे आगे है। तो फ्रेंड्स, अपने आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली कीजिए और पढ़ाई को भी मैनेज कीजिए। हो जाएगा मैनेज, आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। क्या कहना चाहेंगे ईशा जी आप? सर डेफिनेटली आई थिंक जैसे मैंने भी कहा कि मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे बिग फोर से ही आर्टिकलशिप करनी है, तो मैंने फिर उसके अराउंड सब कुछ स्ट्रक्चर किया। नेगेटिविटी फिर अपने आप खत्म हो जाती है कि भैया मेरे पास समय ही इतना है तो मुझे पढ़ना ही इतना में है। तो जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उसके लिए क्या, जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होता है ना, ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा ऑप्शन होता है, वही फंसते हैं। यस, एंड इतना लॉन्ग गैप में अगर हम पढ़ेंगे भी तो बर्न आउट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि टेंशन और होने लग जाती है कि। बट अगर शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं, स्ट्रेस तो वैसे भी होगा, बट हाँ फटाफट करके एंड अपने गोल्स वगैरह सेट करके, और घर से निकल रहे हो, 4 लोगों से बात कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, ये भी सब भी तो ट्रेनिंग का पार्ट है। क्यों दिशा? तो आप जो आपने क्या, यू फील गुड नाउ, योर डिसीजन इज करेक्ट, आपने ग्रैंड थॉटन को ज्वाइन किया एज अ, कि अब आपको रिग्रेट नहीं है कोई भी डिसीजन का कि नहीं मैंने बहुत अच्छा सही डिसीजन लिया लाइफ का? सर आई पर्सनली फील कि इट वाज द बेस्ट डिसीजन कि मैंने JEE ज्वाइन करा, बिकॉज द एक्सपोजर एंड काफ़ी चीज़ें, लाइक मेरी स्टैट्यूटरी ऑडिट में आर्टिकलशिप है, तो वो ऑडिट का काफ़ी लिंक हो जाता था, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी थी। तो या इट्स लाइक You equally think about it? यस सर, डेफिनेटली लिंकेज तो बहुत होती है। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो इट क्लिक्स इन योर माइंड कि ये मैंने करा हुआ है, मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब खुद को भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। And PwC was the best decision of your life? तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एंड ऑफ द डे यू फील सेटिस्फाइड कि आपने जो किया, जो सिलेक्शन किया, अपने टीचर्स को जो सेलेक्ट किया, आपने जो कंपनी को सेलेक्ट किया वो बेस्ट किया। लाइफ में आप आगे भी अच्छी से अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें, और हम कनेक्ट करेंगे आपसे, आगे भी कनेक्ट करेंगे। आप लोग इनको बहुत बार देखेंगे हमारे चैनल में, बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड अस कि जितने भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब भी उनके पास टाइम मिले, अपना टाइम जो मिलता है, संडे हो गया या कोई छुट्टी हो गई, उसमें ये आपको ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।